So yes, definitely, if there are resource scarcity is there, that is there is a mismatch between the demand and supply. Once we have the mismatch between demand and supply, what will happen? There are, for example, in the country like India, where large number, huge population is there, but on the supply side there is scarcity, there are a lot of constraints. So if there is mismatch between demands and supply, the resources are limited, but the developmental objectives are unlimited. So how to achieve that? Only through the prioritizing the, what is the what should be the priority of the current government. Okay, and then how the minimum resources are used for the overall growth and development. So if there are resource scarcity there, suppose you have too much money in your hand, so you don't have to plan on the expenditure how you are going to spend randomly. Also there are a small pt expenditure that you can do easily. But if you have the scarcity of resource, then you'll be planning how you are going to use those amount of money that you are having on the different aspect of expenditure. That is why country like India has the lack of scarcity of resources. And scarcity is there, that means you cannot randomly expend the, you cannot put the money in the in the risky business or in the unplanned or kind of which is unlikely to produce some kind of results. So there has to be a careful thought before before spending every pie of money. That's why we require planning. Okay, so basically planning commission and niti Aayog that we are going to discuss. Then we have the indicative planning and decentralized planning that we are seeing after 73rd and 74th amendment. So in this topic, basically the journey of India since independence, if you look at it, the phases. So earlier it was planning commission that used to decide how you are going to plan, what are the priority area, how you are going to spend the money. And then after 2014, what we are seeing, the niti Aayog has come up. So niti Aayog are now focusing on the basically grassroots level of planning, how to integrate the bottom up approach of the planning development. So that is the new strategy. And especially after 1991 LPG reforms, what we are seeing, the now there is indicative planning, the questions that we have discussed earlier also. So 1991, before it was directive planning, or kind of economic policy was more of a directive nature, in directive in nature, no bureaucracy led. But after 99, since we are focusing on the market based reform, so there is focus on the liberalizing the economy. And then state has become more like a facilitator, enabler, catalyzer, that we see the feature of new public management. So accordingly the planning nature will change. Indicative planning, scenario planning, regional level planning is also there. Local governance has also further increased the grassroots level planning. So all those changes are there. Then various finance commission have also recommended that the further decentralization of devolution of financial resources. So the resources are distributed at the local level, then local planning should be there. That's why we have the district planning committee or metropolitan planning committee. So that's why it becomes important, their effectiveness should be ensured. Okay, so suppose you are expending money, there has to be a independent fiscal council which can monitor the expenses of the government. Because if you are expending huge amount of money, there has to be some kind of independent council that can monitor the expenses. Now currently government has come up with the FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, that talks about there should be fiscal deficit targets is around 3%. Okay, so this has been passed in 2003 only. So now in the context of global economic crisis and COVID pandemic, what we are seeing, there is a fiscal expansion of the state. So a lot of expenditure are done. It led to the breach of fiscal deficit target of 3.3%. So why it was need of the time? Because government need to spend, especially in the when there is recession in the economy, or when the market is not able to perform, when there is recession or depression in the market, so a state will interfere using the Keynesian economics. Okay, fiscal deficit target is 3%. This was said that by 2008 and 9 will have that, but that target has been breached multiple times because of the global crisis, pandemic, or other scenarios that impacted the economic function. Now currently the target is 4.5% by 2025 and 26. Okay, so government has to ensure fiscal prudence, fiscal discipline, fiscal consolidation in terms of increasing the efficiency of the government expenditure. So currently there is a lot of debate with regard to freebies culture, electoral malpractices are there, black money is used in the in the real estate sector. That is also a kind of parallel economy.
that is impacting the revenue or resources of the government. Then there are multiple schemes, which are overlapping in nature. So earlier there were more than 300 schemes and policies, they were overlapping in nature. So it led to the demand for rationalization of program and policy. That is also part of planning, context of planning. Let us, yeah, please. So can we see the PYQs first? Okay, in this, normally the question are related to the Niti Aayog and Yes. planning commission. So the question, okay, look at plans and priorities, paper 2, no? Hmm. So one is regarding the machinery of the planning. How, which institutions are involved in the planning process for Niti Aayog? I know Niti Aayog has become super cabinet in formulating the developmental agenda of our country. You need to examine. That means how Niti Aayog has emerged as a super cabinet. It has lot of, it has been involved in the lot of policy making process. So that, you need to talk about. So examine means you also have to support as well as counter it. It is, it cannot be a super cabinet. It is just enabler, facilitator, providing, act like a source of information. Those aspects should be brought in. Then Niti Aayog has been constituted to implement the goal of cooperative federalism. Yes, of course, the objective of, transfer, the removal of planning commission and replacement of the planning commission by Niti Aayog is, set with this objective that we should go for cooperative federalism. Niti Aayog should act as a facilitator, enabler of the cooperative federalism. Team India concept or the regional councils are created in the Niti Aayog. The Niti Aayog has changed the way India strategized for the economic development, but its effectiveness is yet to be seen. Yes, of course, its, effectiveness is not up to the mark. It is yet to be seen, especially when financial powers are far less than the planning commission. Predecessors is planning commission. Planning commission had direct control over the, they were directly monitoring the implementation of government schemes and policies. So they were there was also distribution of expenditure in terms of planned expenditure and non-planned expenditure. So all the planned expenditure part, they used to be monitored by planning commission. So that means Niti Aayog doesn't have that much financial power that erstwhile planning commission had. Okay, so that in this context you need to discuss the impact or relevance or the working of Niti Aayog. It is argued that Niti Aayog has broken the edifice of planning into fragments. Okay, so that means there are multiple level of planning, regional level of planning, grassroots level of planning. There are also best practices which are being shared among the different states. So those type of questions. So all the questions are related to Niti Aayog. All the last few years questions are related to Niti Aayog. And then one general question is planning in India has failed to meet the challenge of economic development and social change. अब वही इमरजेंस नीति आयोग के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करना है. तो ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मशीनरी. वंस वी टॉक ऑफ मशीनरी, दैट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ नीति आयोग only. Okay, again here Niti Aayog objectives are restore the federal character of Indian polity. So those questions have been asked in the recent time. Then planning commission, nowadays questions will be not be asked planning commission because it has already become outdated. Then National Development Council, again here questions are not being asked, so you can skip this part. Then we have the indicative planning. So what is indicative planning? From 1991 what we are seeing, LPG reforms have taken place. So the institutions have become a facilitator, enabler. Okay, indicative planning is middle path of the planning and market mechanism to ensure coordination between public private activity. Earlier it was license permit quota raj. A state was planning everything, a state was directing the economy. It was public sector led economy. Now we have the market mechanism. So obviously the indicative planning cannot direct or dictate the nature of planning or economic functioning. So it can just enable the facilitate, become facilitator, enabler or catalyzer, and it can promote the integration between the public and private. That's why we have the public private partnership. Okay, then one size fit all was discarded in favor of indicative plan. Yes, of course, because planning commission, one of the biggest failure was one size fit all policy. That that has to be discarded, otherwise it will not become useful.
Then in the transition from state-led economy to the market economy, India should rely more on the indicative planning. So basics of indicative planning should be clear. That will be enough to answer the question. Okay. Then process of plan formulation at the union and state level. So district planning committee, those questions are not asked here. In the urban governance or local governance, normally the questions will be asked how the at the grassroots level also planning is done. So earlier, for example, district planning has been marginalized in many states and prominent in few states. That means there is a lot of variation among the states in terms of implementing the idea of district planning committee. है ना, कुछ स्टेट तो बहुत बढ़िया कर रहा है, कुछ स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. यू नीड टू डिस्कस दैट, है ना. प्लानिंग प्रोसेस एट स्टेट एंड सब स्टेट लेवल मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली और रूरल लेवल, है ना. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज तो नॉट बीन इफेक्टिव, व्हाई दे आर नॉट इफेक्टिव. तो अगेन दैट इज रिलेटेड टू द 73rd and 74th amendment. Then we also have the questions on the decentralized nature of developmental plan that we are following. For example, district planning committee has remained a non-entity in preparation and implementation of plans. Again, you are talking of district planning committee, why they are effective, why they are not effective in, they are effective in some state, not in other state. What are the reasons, what can be done to resolve that problem, that kind of question. So too much focus is there in on this part. And institutional legacy of well entrenched state affected the post reform promises in India. Explain the statement in the light of economic reforms. Okay, so the basically post reform is after 1991 there has been lot of reforms which when there multiple institutions have been created. The institutional legacy of the well entrenched state affected basically after 1991 reform. Planning commission was still performing key functions. So that legacy impacted the working of planning commission in the post reform period. That you need to explain. And decentralized governance must serve as instrument of realizing social change and social justice. That means what was the objective of decentralized governance? So people should become the master of the their own destiny, or they should involve in the planning process. So that was the objective, that there should be focus on the social justice or social transformation should be there. So those aspects basically related to the decentralized or devolutionary of the financial resources. That kind of questions are asked. Then one general, a specific question with regard to government policy, like the Atmanirbhar Bharat is a progressive policy. How do you view Atmanirbhar Bharat Abhiyan policy? Whether it is regressive or progressive, why it is progressive, what are the limitations of the policy, that you need to highlight. Okay, so these are the questions, especially Niti Aayog, and some questions with regard to indicative planning and then grassroots level planning, 73rd and 7. That kind of questions have been asked. Okay. Okay, sir. So in the context now, see the content now you need to shorten out, because the context of planning not much important. It is historical part that we read in the history and economy also. After 1950 what we have done, welfare model, socialistic model, decolonized economy adopted this idea. Okay, then why the idea of planned development model successful? Because we have seen the 1929 economic crisis of USA, where there was Keynesian economics. That gave rise to the welfare state. A state was playing proactive role. Then 1917, Soviet revolution successful. That means public sector commanded the economy. And then many Indian leaders were influenced by those ideas of Western planned economy or the socialist economy. So after independence we have adopted the socialistic or welfare nature of planning. Then after independence, what were the objectives at that point of time? We wanted rapid economic transformation and economic growth, poverty elevation. Then balanced regional growth was also one of the objectives. So various plans, resource scarcity was there, and there was huge demand. So that was mismatch. That's why planning becomes obvious. Here sir has also explained the reason for planning. If there is a mismatch between the demand and supply, if resources are scarce, then you need to plan, है ना. तो इंडिया अडॉप्टेड मिक्स पैटर्न ऑफ प्लानिंग, है ना. तो मिक्स इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों होगा, है ना. बट स्टेट विल हैव द डोमिनेंट रोल in terms of socio-economic transformation. And we adopted 1956 policy that is considered as a blueprint for the development of India. And then DPSP also talked about welfare model of the state. There were various objectives that was set by the DPSP for the social goals or economic goals, है ना. ऑब्जेक्टिव्स वही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्फॉर्म डेवलपमेंट कर दो, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए. तो अल्टीमेटली सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी आजकल क्या ऑब्जेक्टिव है? सोशल जस्टिस है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दीज आर द ऑब्जेक्टिव इन द करेंट टाइम.
तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देखते हैं, बेसिक्स है ना। दो क्वेश्चंस आर नॉट नाउ इट इज आस्क इन दिस टॉपिक। बस ये कि ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, एक्स ऑफिशियो पीएम मेंबर होता था, है ना, सेक्रेटरी वहां पे हो, तो ठीक है। रोल फंक्शंस में वो ये प्लानिंग करेगा, है ना, नेशनल रिसोर्स को एसेस करेगा, 5 साल का प्लान बनाएगा, रिव्यू करेगा, रिसर्च कैरी फॉरवर्ड, जस्ट लाइक सेम आइडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नीति आयोग आल्सो, है ना। तो थिंक टैंक की तरह गवर्नमेंट की काम करेगा, रिसर्च इनोवेशन ये सब करता रहेगा। और ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये सोशल सोवियत प्लानिंग ये सब से काफी इंस्पायर था। तो इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के थ्रू, इसके पीछे लॉ नहीं बना था, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल था, नाउ अगेन दिस क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस, तो इट वाज बेसिकली ए काइंड ऑफ सुपर कैबिनेट, वी कैन से नीड नेशनल डेवलप, बिकॉज इट कंटेन प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, सीएम, सारे सीएम जितने स्टेट्स के और, है ना, यूटीज के सब लोग होंगे, और है ना प्लानिंग कमीशन का मेंबर तो हो गई। तो इट वाज लाइक ए सुपर कैबिनेट, है ना, इंस्टीड ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो रोल फंक्शन वही कंसेंसस बिल्ड करना है, सबके बीच में क्वासी फेडरलिज्म के नेचर हम लोग का है, स्टेट और सेंटर के बीच में कंसेंसस होता था, डिलिबरेशन डिस्कशन होता है, और प्लानिंग कमीशन के आइडिया को अप्रूव किया जाता था, 5 ईयर प्लान को। तो सुपीरियर टू प्लानिंग कमीशन, दैट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या, अगर इसको पिक्चराइज करें, तो एक तरफ क्या देख रहे हैं, प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स लेके आया, 5 ईयर और 5 ईयर प्लान लेके आया। अभी इस 5 ईयर प्लान को कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या होगा? पीएम, सीएम, जितने मिनिस्टर्स है, सब कुछ, सब लोग होंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी है और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी है। नाउ दे विल अप्रूव द 5 ईयर प्लान, yes this 5 year plan, yeah, remove some idea, add some idea, those things will be approved by national development council. Then the 5 year plan will, it will be implemented by the various, government or planning commission will monitor that. That was the main idea. It was superior to planning commission because federal nature था, federal institutions of planning था, ठीक। तो जो भी ग्रीवेंसेस थे दैट वाज बीइंग एड्रेस। तो नाउ सिंस इंडिपेंडेंस टिल 2000 दिस आइडिया वाज फॉलोड, है ना। पहले क्या हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, बॉम्बे प्लान है, गांधीयन प्लान है ना। प्लानिंग वाज अडॉप्टेड, यूनिटी इंस्टीट्यूशंस थे, टॉप डाउन अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ठीक। तो इंडिया में क्या था, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में बहुत पुअर था, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी था, इनइक्वालिटी था, बैकवर्डनेस था। तो प्लानिंग क्या 5 ईयर प्लान के थ्रू एवॉल्व हुआ, सेंट्रलाइज प्लानिंग, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया। हम लोग क्या देखा, देखो पार्लियामेंट है ना, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टेट लेवल प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, और बाद में सब इंटीग्रेट करके अपन 5 ईयर प्लान में आता था। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या है, 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग, ये तो टेक्निकल है, नॉट रिक्वायर्ड टू नो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे आजादी के बाद क्या होना कि सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंटल मॉडल हमने अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इनिशिएट किया गया 1952 में। फिर तो उसके अंदर और एआरसी 2 ने क्या क्या रिकमेंड किया कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड सेटअप करो, है ना। एआरसी 2 के आधार पे उसको रिकमेंड, मतलब एआरसी 1 ने रिकमेंड किया था और सेटअप किया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का सेटअप किसके रिकमेंडेशन, प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया। 73rd 74th अमेंडमेंट देख ही रखे हैं। और अभी जो है बाद में 5 ईयर लेटर 5 ईयर प्लान आल्सो अडॉप्टेड लॉट ऑफ कंसल्टेशन, है ना। इंडिकेटिव प्लानिंग कब अडॉप्ट की, 8th 5 ईयर प्लान में, यानी 1991 का जो रिफॉर्म था उसके बाद इंडिकेटिव प्लानिंग को हम लोग देखते हैं इंडिया में है। तो वर्किंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, सक्सेस फेलियर, तो इसमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, डिटेल जानने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस नहीं आ रहे आजकल, है ना। तो इंडिया क्या अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान, वेलफेयर मॉडल अडॉप्ट किया, डेवलपमेंटल प्लानिंग, सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाना है। तो पॉजिटिव चेंज वही है कि, है ना। और मतलब इसमें निगेटिव्स क्या क्या है, जैसे इनवर्ड लुकिंग था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है 2-3% ही ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ मॉडल है ना सक्सेसफुल नहीं रहा, ग्रोथ क्वांटिटी मॉडल था, सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, ठीक, सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहा था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्या क्या इनिशिएटिव था, है ना। महालनोबिस मॉडल अपन सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, या पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सरकार गवर्नमेंट का बढ़ा। फिर 1970 बेसिक नीड अप्रोच हो गया, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक, 5 ईयर प्लान से। तो फेलियर था क्योंकि ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लेट, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एट द सेम टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं, उधर साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर का इमरजेंस हुआ 1950s में, है ना। तो दे वर जस्ट लाइक दे वर हैविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सिमिलर टू इंडिया, बट विद इन 30 to 40 years दे वर एबल टू सक्सीड, है ना। तो वहां पे है ना कई लेसन हमें रियलाइज किए कि नहीं, देयर वर सम मिस्टेक्स दैट हैज बीन कमिटेड। तो एंड देन वी हैव द
इंडिया अडॉप्ट इंटीग्रेटेड प्लानिंग आफ्टर 1931, 73rd 74th अमेंडमेंट हो गया। अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स था, जैसे मान लो हेल्थ, सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर इंप्रूव करना है 10th 5 ईयर प्लान में। 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू चेंजेस इन द प्लानिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग इंडिकेटिव, क्या हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ रेट ना बहुत ही पुअर था। तो ओवरऑल क्या समझ आया कि जो प्लानिंग कमीशन के कारण जो है, जो प्लानिंग हो रहा था टॉप डाउन सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, फेडरल स्टेट, काफी लोग कंप्लेन करता था कि प्लानिंग कमीशन इज एक्टिंग लाइक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्टेटिंग द स्टेट, देयर वाज लैक ऑफ फ्लेक्सी फंड। ठीक। तो प्लानिंग कमीशन है ना, तो क्या होगा, रिसर्च थिंक टैंक की तरह काम करना, तो कई सारे वीकनेस था, ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बन गया है ना, रूटीन एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व था, सेंट्रलाइज प्लानिंग होता था, यूनिफॉर्म वन साइज फिट ऑल था। और ये सुपर कैबिनेट की तरह काम करने लगा है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर करता था, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग का और क्या देख रहे हैं कि है ना, सोशियो, तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो मतलब इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम कर रहा है। कई लोग इसको इंटरवेंशनिस्ट तरह से इसको क्रिटिसाइज किया कि आर्म चेयर एडवाइजर है, बैठ के ना इसी में बैठ के सिर्फ एडवाइस करता रहता है। ठीक है, इसको डिस्क्रेडिट किया गया, कई स्टेट है ना इसके खिलाफ थे। तो 12th 5 ईयर प्लान में हम लोग देख रहे हैं सिनेरियो प्लानिंग अडॉप्ट किया, जो कंटीजेंट प्लान होता है, जैसे है ना, तो डिजास्टर हो गया, ये हो गया, उस समय अपन को कुछ बैकअप भी होना चाहिए, अल्टरनेट प्लानिंग्स भी होने चाहिए बेस्ड ऑन द फेवरेबल सिनेरियो और अनफेवरेबल सिनेरियो। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया कि भाई सुपर कैबिनेट बन तो गया, लेकिन वो पॉलिटिकल नेचर था, रबर स्टैंप की तरह यूज होता था, है ना, मीटिंग में भी है ना सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो कई सारे है ना क्रिटिसाइज किया गया कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह आप स्टेट को ट्रीट कर रहे हो, स्कूल चिल्ड्रन की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसको डिक्टेट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल तो हो नहीं रहा है। और उसको सीएसएस को भी रिस्ट्रक्चर करने का है ना, तो बीके चतुर्वेदी कमेटी सेटअप किया गया था 2011 में कि जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम उसको रिस्ट्रक्चर को रेशनलाइज करना जरूरी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 1969 में बताया गया। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स होते हैं कि जो बैकवर्ड हिली स्टेट है, कई सारे पैरामीटर्स। ठीक। तो फिर उसको है ना इस प्लानिंग कमीशन को रिफॉर्म करने, एनडीसी को रिफॉर्म करने के लिए कई सारे कमिटी ने रिकमेंड किया कि इसको ना चेंज करने की जरूरत है। जैसे मान लो नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कमीशन बना दो इंस्टीड ऑफ एनडीसी। तो उसमें कुछ इनोवेशंस करने का कंसल्टेशन है, एक्सपर्टीज को ऐड करना। 2014-15 के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लानिंग कमीशन हटा के आप क्या कर रहे हैं, बॉटम अप प्लानिंग कर रहे हैं, नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग पे तो क्वेश्चन आता ही है ना। तो इसमें कंपोजिशन बेसिक्स है, गवर्निंग काउंसिल होगा, सब ग्रुप पैनल होगा, है ना, रोल फंक्शन थिंक टैंक की तरह काम करता है, मोबिलाइज करेगा इनोवेशन क्रिएटिविटी ये सब। थिंक टैंक हो गया, डिस्टिंक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। बॉटम अप प्लानिंग होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। ठीक। तो ये हम लोग देख रहे हैं हर लेवल ऑफ गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है। वर्किंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर एक ना नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा लेके आया 15 साल का, है ना। तो बॉटम अप प्लानिंग है, इंटीग्रेट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे मान लो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इनिशिएटिव है, वेरी गुड इनिशिएटिव, है ना, पॉलिसी इनिशिएटिव में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली टारगेट क्या है, कोऑपरेटिव प्लस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, इनोवेशंस को बढ़ाना। और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में क्या है, ये रिप्लेस कर दिया 5 ईयर प्लान को, रिप्लेसमेंट है ना। इसमें क्या इंडिकेटिव प्लानिंग का एक पर्सपेक्टिव आता है। ठीक। इसमें क्या होगा, कंपोनेंट क्या क्या है, एक तो 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट आ गया, 5 साल का स्ट्रेटजी पेपर है, और 3 इयर्स का एक्शन प्लान है। इट इज आई थिंक, है ना। तो तो ये हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट एजेंडा जो है इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एस्पेक्ट पे क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और फ्यूचर में। ठीक। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अभी तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग कहाँ चले गए, एस्पिरेशनल ब्लॉक, है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये अब ये ना फर्दर डीपनिंग ऑफ द दिस आइडिया। तो अलग अलग रिपोर्ट्स लेके इनोवेशन पे रिपोर्ट लेके आता है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है। अब जैसे साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ इलेक्शन है, उस पे भी क्या प्रोज एंड कॉन्स है, पीपीपी सेक्टर को कैसे रिबूट किया जाए उसके बारे में भी है ना कुछ इनिशिएटिव्स है। तो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया गया, जैसे मान लो नीति आयोग के सजेशन पे आयुष्मान भारत है, न्यूट्रिशन मिशन है, मेडिकल कमीशन है, पीपीपी मॉडल है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है। तो दो आइडियाज हैव बीन implemented or brought on by the innovations of नीति आयोग। तो यहाँ पे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग चल रहा है, डाटा एनालिसिस, बिग डाटा, ये सब का यूज किया जा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का रिपोर्ट्स में पब्लिश किया जाता है, और उसको ना पब्लिश करने के बाद शेयर किया जाता है एक दूसरे। तो जैसे इनोवेशन इंडेक्स लेके आया, डिजिटलाइजेशन पे काफी ज्यादा फैसिलिटेटर रोल रहा है, अटल इनोवेशन लॉन्च किया गया, थिंक टैंक है ना, क्रिएटिव इनोवेशन ये सबको प्रमोट करने के लिए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये सब के लिए अपन क्या देख रहे हैं कि दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीति आयोग। तो अब ये ब्यूरोक्रेटिक सिलोस को ब्रेक डाउन करता है, इनोवेशन पॉलिसी मेकिंग में लेके आता है।
ठीक। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थिंक टैंक की तरह काम करेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बॉटम अप प्लानिंग, ये सब हो गया। बॉटम अप प्लानिंग पहले का नीति आयोग ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन क्या होता था, सेंट्रलाइज, टॉप डाउन, यूनिफॉर्म, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, डाइवर्सिटी के खिलाफ था वो। अब उसको रिप्लेस कर दिया अपन बॉटम अप प्लानिंग से, जो फोलेक आइडिया इंटीग्रेशन का, कि रीजनल एक्सप्रेशन और नेशनल एक्सप्रेशन सबको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक। तो हम लोग बॉटम अप प्लानिंग अडॉप्ट कर लिए। तो इसमें क्या होता है कि वही है कि है ना, जो टॉप लेवल प्लांट एक्सपेंडिचर नॉन प्लांट का जो डिस्टिंक्शन था वो भी खत्म कर दिए। ठीक। अभी रीस्ट्रक्चरिंग कर दिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी हो गया। फंड यूटिलाइजेशन के लिए फ्लैक्सी फंड भी हम ऑलमोस्ट 25% दे रहे हैं, कि बेस्ड ऑन द लोकल सिनेरियो यू ट्राई टू यूटिलाइज द फंड। ठीक। नीति आयोग को फंडिंग पावर नहीं दिया गया, तो अगेन दैट इज द कंपेयर करते हैं जब प्लानिंग कमीशन से, तो उसको पावर था, इसको फंडिंग पावर, फाइनेंशियल पावर कम कर दिया गया। और ये गवर्निंग काउंसिल, ये सब ग्रुप पैनल, ये सब किसके अंदर, सीएम और सब है ना, उसके मेंबर्स हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं। ग्रास रूट लेवल पे ग्राम सभा का है ना, विलेज डेवलपमेंट प्लान लेके आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उसको इंटीग्रेट कर देगा। स्टेट लेवल पे स्टेट प्लानिंग बोर्ड उसको इंटीग्रेट कर देगा। तो स्टेट्स को क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दिया है प्लानिंग और डेवलपमेंट ये सब में। और लेकिन क्या देखिए, ओवरऑल सिचुएशन हैज नॉट मच इम्प्रूव, है ना। बोलते तो है कि बॉटम अप प्लानिंग होगा, ये होगा, लेकिन अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। अभी भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है इट टू गेट सक्सेस, दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो बॉटम अप प्लानिंग हैज बीन कंडक्टेड इनटू सेगमेंट्स। तो अब ये क्या होगा, स्टेट लेवल प्लानिंग हो रहा है, बट स्टेट लेवल प्लानिंग हैज नॉट चेंज मच। इनफैक्ट स्टेट प्लानिंग क्या है कि मोरलेस जो पहले होता था प्लानिंग कमीशन के टाइम, वो सही चल रहा है। ठीक। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, मिड टर्म प्लान रिव्यू करता था, एसेस करता था कितना इंप्लीमेंट हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, तो कोर्सिव मेजर से अडॉप्ट करता था, है ना। तो वो है ना, तो इसलिए क्या होगा, प्लानिंग कमीशन से तो नीति आयोग कमजोर ही हो गया ना, क्योंकि फंडिंग या फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन का तो डर के मारे सुनता था, लेकिन नीति आयोग का और ज्यादा नहीं सुनता है। ठीक। तो नेशनल लेवल प्लान पर्सपेक्टिव लैकिंग है ना, नहीं है। और हम लोग क्या कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज ये सब क्या है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है ना, एक्सपर्टीज नहीं है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में, है ना। और क्या होता है कि जो नीति आयोग का फ्यूचर टेन जो एजेंडा ये सब सेट किया गया, तो इफेक्टिव कब होगा, जब हमें बॉटम अप से इंटीग्रेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंटीग्रेट करेंगे। वो वीकनेस और क्रिटिसिज्म और भी है ना। जैसे मान लो वीकनेस, रिसर्च पेपर ये सब क्या है ना, बस कैची स्लोगन ये सब लेके आता है ना। तो रियल बेस्ड ग्राउंड लेवल रिपोर्ट से मिसमैच भी होता है। फिर जैसे मान लो डबल कर देंगे फार्मर इनकम को, माल न्यूट्रिशन हटा देंगे, दोज काइंड ऑफ वेग, नो, हाउ टू अचीव दैट, हाउ टू एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन, दोज माइक्रो डिटेल्स आर नॉट बीइंग वर्कआउट, है ना। तो रिसर्च पेपर में कैची स्लोगन ये सब रहता है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमी क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आर्म रिसर्च आर्म की तरह काम कर रहा है। तो स्टेट क्या होगा, स्टेट मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब पे ज्यादा है ना, एक्चुअल रिपोर्ट डाटा वाटा का मैनिपुलेशन भी हो रहा है। ठीक। तो उसके बाद और हम लोग देख रहे हैं कि है ना, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं, लाइन एजेंसी का रोल भी अचीव कर दे रहा है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होगा यूनियन लेवल पे, दैट इज अगेन नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर होता है ना, क्योंकि पीएमओ में लोकेटेड है, तो काफी ज्यादा है ना पीएम को इंटरफेरेंस हो रहा है। क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स भी बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स है ना। तो उसके बाद फिर फंडिंग नहीं है, इसके पास फंडिंग पावर नहीं है, तो कोई सुनता नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म एक तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, कॉम्बेटिव या है ना कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म ज्यादा चल रहा है। ठीक। तो दो इट वाज एनविजन दैट नीति आयोग विल एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कितने सारे वीकनेसेस आ गए, है ना, एनसी कमी सेक्सुअल। तो सब लोग ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया, वी नीड टू रिफॉर्म द नीति आयोग आल्सो 2.0 की बात किया। इसको है ना 1.5 से 2% फंडिंग दो, ताकि है ना इफेक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरह इमर्ज हो जाए। फिर उसके बाद है ना प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑफिस सेटअप किया गया करेंटली, जो मॉनिटर करता है कितना सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम, नहीं हुआ। जैसे मान लो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उस पे है ना, तो रिकमेंड कर सकता है ये कहाँ फंड करो, ये करो। ठीक। तो हम लोग इनको पॉजिटिव कॉर्पोरेट जो प्लानिंग कमीशन का जो पॉजिटिव आइडिया था ना, उसको भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। कंपेयर जब हम लोग करते हैं, ताकि कंपेयर करेंगे तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव देता है, प्लानिंग कमीशन क्या करता था। तो यहाँ पे नीति आयोग का रोल पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है, लेकिन प्लानिंग में इसका नैरो था। ठीक। तो ये फेडरल इन कैरेक्टर है, ये यूनिटरी इन नेचर था। प्लानिंग कमीशन नॉन फंडिंग पावर था, यानी नीति आयोग के पास फंडिंग पावर नहीं है, इसके पास फंडिंग पावर है, बॉटम अप टॉप डाउन। ठीक है, पीएम था, इधर भी है। तो लेस ब्यूरोक्रेटिक, प्लानिंग कमीशन मोर ब्यूरोक्रेटिक था। तो सिमिलैरिटी तो है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, थिंक टैंक है, ये सब तो सिमिलर, सेंट्रलाइज बायस है। ठीक। सिमिलैरिटी का बावजूद भी हम लोग खुद देखे डिफरेंसेस है।
ठीक। तो प्लानिंग कमीशन तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का फीचर था, सेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का आइडिया था। नीति आयोग है ना रेडिकल डिपार्चर है। अगला जो क्वेश्चन आता है इंडिकेटिव प्लानिंग से आता है। प्लानिंग क्या होता है, ब्रॉड सेक्टर स्पेसिफिक है ना, 5 से 5 साल अधिक होता है तो यू आर प्लानिंग समथिंग। तो पहले क्या होता था, डायरेक्टिव प्लानिंग होता था, इंपेरेटिव प्लानिंग, यूएसएसआर का मॉडल, सेंट्रल एजेंसी बना के लेगा आगे स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाएगा। और लेकिन पर्सपेक्टिव प्लानिंग में या कैपिटलिस्ट प्लानिंग में क्या देख रहे हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग ये क्या होता है कि भाई लिबरल है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देते हुए इकोनॉमी को कहाँ जाना है। रोलिंग या एनुअल प्लान क्या होता है, जब है ना कई बार मान लो कि वर्ल्ड चाइना वार हो गया, पाकिस्तान से वार हो गया, तो एनुअल रोलिंग प्लान या एनुअल प्लान लेके आए थे अपन। डायरेक्टिव डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या होता है, जो इंडियन जैसे मान लो कि डेमोक्रेटाइज तरीके से प्लानिंग को है ना इंटीग्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिव डेमोक्रेटिक प्लानिंग है ना क्यों जरूरत था, क्योंकि रिसोर्स कम था, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी चैलेंजेस बहुत ज्यादा था, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी था, रैपिड डेवलपमेंट की जरूरत है ना, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट यहाँ पे डेवलप था नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं, डेवलप्ड और डेवलप कंट्री, डेवलपिंग मान लो यहाँ डेवलप यहाँ पहुंच गया, तो देयर इज ए गैप, तो हमको मैच करना है, तो वी नीड टू कैच अप फास्ट। तो दैट्स व्हाई नो दिस आइडिया ऑफ वेलफेयर मॉडल वाज अडॉप्टेड। ठीक। पोस्ट 1990 हम लोग क्या देख रहे हैं, एलपीजी आ गया, रोल बैक ऑफ द स्टेट हो गया, मार्केट लेड इकोनॉमी हो गया, है ना, तो वी आर ट्राइंग टू कैच अप। ठीक। पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया क्या अडॉप्ट किया 1991 के बाद, इंडिकेटिव प्लानिंग। अब ये क्या करता है कि भाई नेचर ऑफ स्टेट भी चेंज हो रहा है, सोशलिस्टिक सब कहाँ जा रहे हैं, कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट की ओर जा रहे हैं, तो 8 5 ईयर प्लान से विजिबल हो जाता है। यहाँ पे क्या डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न में रेलिवेंट होता है, बट वेन्स यू हैव द मार्केट लिबरल इकोनॉमी, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिबरलाइज हो गया तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, रोल स्टेट ऑफ रोल बिकम फैसिलिटेटर, इनेबलर, है ना, सप्लीमेंटर। तो इस सिनेरियो में क्या है कि आपको ना डायरेक्टिव नहीं हो सकते, यू नीड टू फैसिलिटी बिकम फैसिलिटेटर। पीपीपी का जमाना आजकल, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट साइड। ठीक। तो हम लोग क्या इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसका फोकस वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ। ठीक। तो पीएसयू मतलब फोकस अब हम लोग और क्या देख रहे हैं, जैसे एलपीजी के टाइम देख रहे हैं है ना, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। ठीक। तो ये हम लोग का इंडिकेटिव प्लानिंग इज करेंटली पार्ट ऑफ पार्सल। फिर अब जैसे डेमोक्रेटिक डायरेक्टिव प्लानिंग कंट्रोल सोशल सेक्टर पे, है ना। तो अब ये जैसे मान लो कि जो वेलफेयर स्कीम पॉलिसी ये सब में क्या आता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक डायरेक्टिव प्लानिंग की अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो पूंची कमीशन क्या बोलता है, प्लानिंग कमीशन को चेंज करना है, स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल का अडॉप्ट किया हुआ है ना, उसको अपन को चेंज करने की जरूरत है। ठीक। तो इसमें वो ये प्लानिंग मॉडल चेंज करना, डायरेक्टिव से इंडिकेटिव की ओर रिकमेंडेशन पहले भी दिया गया। अब 2014-15 के बाद क्या देख रहे हैं, 5 ईयर प्लान को ही खत्म कर दिया अपन, है ना। तो अब हम लोग क्या रिप्लेस किए, डेमोक्रेटिक डायरेक्टिव स्टाइल प्लानिंग वाज डिसकंटिन्यू। हम लोग है ना नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा लेके आए हैं, नीति आयोग के द्वारा पर्सपेक्टिव प्लानिंग बना रहे हैं या इंडिकेटिव प्लानिंग बना रहे हैं, 7 साल का स्ट्रेटेजी है, 5 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जस्ट इनेबल कर रहा है, इनोवेशन क्रिएटिविटी ये सब पे ब्रॉड गाइडलाइंस लेके आ रहा है ना, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है इकोनॉमी का। इंडिकेटिव प्लानिंग वही होता है ना, तो स्टेट के पास है ना एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पब्लिश करना। तो अब इंडिया नीड्स प्लानिंग इफ इट नॉट, है ना, इवन इफ इंडिया डोंट हैव प्लानिंग कमीशन, यस ऑफ कोर्स, व्हाई देयर इज मिसमैच बिटवीन रिसोर्स एंड डिमांड। तो पहले क्या था, डायरेक्टिव प्लानिंग था, स्टेट का रोल डोमिनेंट था, अब क्या 1990 में तीनों आ गया, है ना। तो स्ट्रॉन्ग पीएसयू अब क्या कॉम्पिटिटिव की ओर अपन जा रहे हैं। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन इधर हटाने के बाद क्या देख रहे हैं कि है ना, डिस्पाइट रिमूवल ऑफ द प्लानिंग वी स्टिल नीड द प्लान। इसलिए क्या है कि अभी भी नीति आयोग का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लानिंग तो इसलिए नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो नीति आयोग लेके आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। प्रॉब्लम क्या क्या है कि भाई अभी स्ट्रीमलाइनिंग नहीं हो रहा है ना, स्ट्रीमलाइन नहीं है ना, उसके स्टेट लेवल का कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क गवर्नेंस का दौर आ गया यहाँ पे, तो प्लानिंग आपको कैन नॉट बी सेक्टर स्पेसिफिक नहीं हो पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया, इंटरलिंकेजेस बढ़ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हो गए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मोनोपोली खत्म हो गया तो कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा इकोनॉमी को, मार्केट को। तो आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना, तो क्या सक्सेस रहा क्या फेलियर है, डेट वी नो, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। तो नीति आयोग का रोल काफी जाने कैटलाइजर की तरफ, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कैटलाइजर का भी रोल आता है। बैकवर्डनेस है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अपन देख ही चुके हैं, या ब्लॉक लेवल प्रोग्राम। तो रूरल इंडिया का जो चैलेंज उसको ओवरकम करना है, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और तो उसमें काफी ज्यादा रोल रहा है ना। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, सब कुछ है ना वो देखता था, नीति आयोग आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को काफी ज्यादा फाइनेंशियल पावर दिया गया है ना।
तो फंड जो भी ट्रांसफर होता था स्कीम पॉलिसी के लिए, अब पहले प्लानिंग कमीशन देखता था, अब किसके पास चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला गया। ठीक। तो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और इसमें हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। मिनिस्ट्री क्या होता है, ओवर बर्डन मिनिस्ट्री है, ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक है। यानी जो आपने प्लानिंग कमीशन की जो पावर थे स्कीम पॉलिसी का, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया इंस्टीड ऑफ नीति आयोग, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई सेपरेट अप्रोच की जरूरत है ना, लोगों के स्टेट का ग्रीवेंस है, लोगों का ग्रीवेंस है, तो उसको एड्रेस करने का। तो दीज आर द चेंजेस दैट शुड बी ब्रॉट इन। ठीक है। तो दिस इज हाउ, है ना, प्लान एंड प्रायोरिटी कुछ नहीं है, बस नीति आयोग, इंडिकेटिव प्लानिंग, है ना, और इंडिकेटिव प्लानिंग, और क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो ये तीन पार्ट में क्वेश्चंस अल्टरनेट ईयर में आ रहे हैं बस। ठीक है। चलो एक एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल टेक अप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म।
Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so this topic again becomes very important whether you read economics or polity or social sector. So administration, how it has undergone various changes after independence, है ना? So you need to discuss, you should have command over the key recommendation of of suggestions by the various committee or commissions. So why do we need to have the reforms? What are the various reforms that has been initiated, and what are the problems in terms of implementation? Why implementation has been poor? ठीक है, तो वो अपन को देखना है। तो रिफॉर्म की जरूरत क्या है, क्यों रिफॉर्म की जरूरत है ना? तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज और सोशल चेंज में क्या देख रहे हैं, गैप हो रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लैग है। व्हाई? सोसाइटी चेंजिंग एट ए वेरी फास्ट पेस, है ना? देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इकोनॉमी, but at the same time bureaucracy has a tendency of maintaining a status quo. They do not like the abrupt change, disruptive change को permit नहीं करता है। तो as a result there is a administrative lag. So there is a deliberate inducement in the administration so that they are able to match or catch up with the social reforms। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कमीशन बनाएंगे, कमिटी बनाएंगे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम, एंड हाउ कैन वी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी कैन अडॉप्ट। जस्ट लाइक जैसे कंपेरेटिव पवेड है या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, वहां भी क्या है, कहीं ना कहीं रिफॉर्म ही है। हर फेज में, हर डिकेड में कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म आ रहा है। ठीक, जैसे मान लो डिजिटल का, आप 2000 डिजिटलाइजेशन पे एग्जांपल दिया हुआ सर ने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया अभी, लेकिन तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 के कॉन्टेक्स्ट में आया, लेकिन आजकल इतना तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो पॉलिसी विल ऑलवेज हैव द पॉलिसी गैप, पॉलिसी लैग, है ना? तो उसको कैसे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये सब लाके आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते अगर है तो कुछ। हाँ, ये तो इसमें जो क्वेश्चंस आया है पिछले 2-3 साल में, ये देखो, ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो क्या, उसका यूटिलिटी खत्म हो गया। तो अब ये बता रहे हैं कि हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैन रिवैम्प, रीस्ट्रक्चर एंड रीडिजाइन द existing government structure to meet the new challenges. So what are the new challenges that are posed to the Indian administration, and how the reform process can restructure, revamp or redesign the governance structure in the current time so that they are able to meet those challenges? तो यू नीड टू डिस्कस दैट, है ना? तो आपको सब पता होना चाहिए नए चैलेंजेस क्या है, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट का चैलेंज है, पीपल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, वो सब क्या है, नई चैलेंजेस है। इनइक्वालिटी है तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों जरूरत है, क्योंकि पहले 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया, लेकिन उससे पहले तो ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंट एजेंडा था। आफ्टर दिस पीपुल लेड, है ना, लोकल गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या है कि ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को completely transform करना पड़ेगा, then only the new challenges can be met. तो those kind of some case studies, some specific example also you can take. Then next question is, तो ये है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज होमोगोनल एंड आर्डुअस, व्हाट लैक द पुश टू रियलाइज। वही है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो तो जनरल पॉइंट्स है ना, इंस्टीट्यूशनल लेवल प्रॉब्लम, पॉलिसी लेवल, पॉलिटिकल कल्चर, तो ऑल दोज प्रॉब्लम कैन बी हाईलाइटेड। Considerable attention has been paid to the restructuring of the administrative system at the central level and local level, लेकिन स्टेट लेवल को हमने क्या किया, अब तक इग्नोर किया है। स्टेट पे मीडिया का भी फोकस नहीं होता, मीडिया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, या लोकल लेवल पे लोकल मीडिया, लोकल है ना, इश्यूज को ज्यादा लोग, क्योंकि लोगों को करीब है तो वहाँ हाईलाइट होता है। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ना, दे हैव नॉट बीन स्क्रूटनाइज, और उसका फंक्शनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं आता है। क्या क्या सजेशन है, क्या सोल्यूशन है, उसको अपन को डिस्कस करना है। ठीक, तो एक्सलेंट आइडिया बट पुअर इम्प्लीमेंटेशन, है ना? इंडिया में तो यही है, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे विड्रो विल्सन यही तो बोला, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बढ़िया बन गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो देयर इज अ मिसमैच।
तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन क्यों है? क्योंकि है ना इंडिया में अभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं है, सब पॉलिटिकल डायलॉग डिबेट डिस्कशन में ही आइडियल पॉलिसी बनाएंगे, है ना, आइडियल स्कीम्स बना दो, इसको बना दो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं है। बट करेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट, जैसे डीबीटी ले आया, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक सर्वे भी है ना हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आता है। फाइनेंस कमीशन हो गया, है ना, वो भी इनोवेटिव ले आता है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, नीति आयोग हो गया। तो दे आर वर्किंग टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ innovative ideas and they are also looking at the how to improve the implementation level, है ना। तो जैसे सोशल ऑडिट ये सब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन है, तो बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए अपन लेके आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद कमिटी कमीशन का जो लास्ट फ्यू ईयर में क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 2020 में क्वेश्चन क्या है, टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन। अब ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन पे तो ये तो इम्पोर्टेंट है, न्यूज में ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाएगा। अब फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस में है ना चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद। तो अब यू नीड टू क्रिटिसाइज पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेंथ, है ना। अपार्ट फ्रॉम अपॉइंटमेंट व्हाट एल्स नीड टू बी डन, दैट आल्सो एस्पेक्ट शुड बी हाइलाइटेड। ठीक, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हैव नॉट मेंट रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द पॉल एपलवाई कमेटी। तो डू यू एग्री, है ना। तो पॉल एपलवाई कमेटी आजादी के बाद है ना 1950s में अलग अलग रिकमेंडेशन दिया उसी के आधार पे। जैसे मान लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया था, है ना। तो सीएजी को भी इसने क्रिटिसाइज किया था। तो डू यू थिंक, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव द सम स्पेसिफिक एग्जांपल और रिकमेंडेशन ऑफ पॉल एपलवाई कमेटी और उसको कंपेयर करना है, कैसे डिफरेंट है सिमिलर है, यही है क्वेश्चन है। डू यू एग्री मतलब वही दिखाना है। सेकेंड ईआरसी है ना, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, वही डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, जो काम जिस लेवल पे हो सकता है, अननेसेसरी डोंट सेंट्रलाइज होना जरूरत नहीं है, उसको खत्म करो। ठीक, सेवंथ पे कमीशन रिकमेंडेशन डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड कोरिलेट द नीड फॉर द सिविल सर्विस रिफॉर्म। अब ये सेवंथ पे कमीशन का जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन था, देखो फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन, ये सब क्या किया कि एलपीजी के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पे कमीशन क्या बोलता है कि ना एक तो पब्लिक सेक्टर का खत्म करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सबको ना मार्केट मैकेनिज्म पे लेके आओ। तो उसमें अपन और क्या है कि डाउन साइजिंग ऑफ द स्टेट, रोल बैक ऑफ द स्टेट, विड्रॉल ऑफ द स्टेट, उन कॉन्टेक्स्ट में सेवंथ पे कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन, सिक्स पे कमीशन सेवंथ ने रिकमेंड किया। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी का है, पे इंक्रीज का है, तो अकाउंट तो पे तो बढ़ा दिए सिक्स पे कमीशन से, लेकिन पे बढ़ाने के बाद तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी तो इंश्योर कराओ। तो दैट एस्पेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड। सेकेंड ईआरसी का मेजर कंसर्न क्या है, करंट स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो वही है कि एक तो फाइनेंस कमीशन प्लानिंग, उसके बाद तुम्हारा सेकेंड ईआरसी पे क्वेश्चन आ रहा है, फाइनेंस कमीशन पे आ रहा है ना। तो दो रिकमेंडेशंस टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ठीक, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नीड लीगल बैकिंग बट इट आल्सो रिक्वायर इंक्रीजिंग अवेयरनेस, यस ऑफ कोर्स, है ना। क्या होगा आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अवेयरनेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन कर तो दिया लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, बैंक अकाउंट खोल के बैठ गया, डोरमेंट अकाउंट हो गया, दोज आर द चैलेंजेस। ठीक, तो बस है, देखो एक एक ही क्वेश्चन पिछले 5 साल में आया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में बस जनरल एक आइडिया, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये सब का जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है क्या क्या उसको देखना है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन में अपन यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट होता है ताकि, है ना, रेसिस्ट जो चेंज को रेसिस्ट करता है ना उसको ओवरकम किया जाए। ठीक है, तो जेनरिक प्रोसेस है ना, नेचुरल भी होता है, डेलिबरेट भी होता है। नीड ऑफ रिफॉर्म क्या है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, इकोनॉमी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब लाना जरूरी है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, लोगों का है ना नॉलेज अवेयरनेस में चेंज हो रहा है। आप आजकल इंजेंडरिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मींस वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आ रहा है। नए इश्यूज आ गए, साइबर क्राइम है, सोशल मीडिया बिहेवियर है, मैनिपुलेशन है, क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। तो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी भी चेंज होता है। तो व्हाट टू रिफॉर्म, रिफॉर्म में क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आता है, प्रोसीजरल रिफॉर्म और बिहेवियरल रिफॉर्म। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ये सब किस पे फोकस है, ये किसकी रिकमेंडेशन है ना, क्लासिकल एरिया का आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। तो पोस्ट कॉप वाला है, पीओसीसी वाला जो आइडिया है, स्ट्रक्चर और प्रोसेस वाला। बिहेवियरल लेवल तो अलग से अपन ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल थ्योरी हमने पढ़ा। तो व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स, है ना, तो वो हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव वही है, एफिशिएंसी, विड्रो विल्सन की तरह। विड्रो विल्सन भी तो रिफॉर्म ही चाह रहा था, है ना। विड्रो विल्सन क्यों स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया, वो ही वाज वेरी मच फेड अप विद द spoiled system, lack of innovation, creativity in the field of administrator. That's why he wanted that administrative system should be reformed. There should be a structural reform, procedural and
बिहेवियरल रिफॉर्म, मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, बिजनेस लाइक अप्रोच होना चाहिए। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डायकोटोमी, दीवार खड़ा कर दो, डायकोटोमी क्रिएट कर दो। ठीक। इवन रिक्स आल्सो टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ रिक्स का भी आइडिया अपन जो प्रिज्मेटिक से डिफ्रैक्टेड की ओर ले जाना, फ्यूज सोसाइटी से प्रिज्मेटिक टू डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ रिफॉर्म। कि फ्यूज में क्या होता है, मल्टीपोली फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ रिफॉर्म मेजर, थ्योरेटिकली उसको हम समझ सकते हैं। ठीक। तो जुडिशियल में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, हर जगह अपन क्या देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, है ना। पॉलिटिक्स में कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, जुडिशियल में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है ना, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी बात हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहा है। ठीक। ये हो गया हाउ टू रिफॉर्म। तो एक होता है इंक्रीमेंटल, दूसरा होता है रेडिकल, बिग बैंग रिफॉर्म्स लेके आओ 1991 की रिफॉर्म की तरह। जीएसटी रिफॉर्म हो गया, फॉर्म्स बिल हो गया, डीमोनिटाइजेशन हो गया, 73rd 74th अमेंडमेंट हो गया। दे आर बिग बैंग रिफॉर्म्स, रेडिकल इन नेचर एकदम, जो पास से लेकर काफी चेंजेस होता है। इंक्रीमेंटल में जैसे पे कमीशन क्या होगा, हर बार है ना 5-10 साल में पे कमीशन आएगा, कुछ कुछ रिकमेंड करेगा। बजट में भी क्या होता है, इंक्रीमेंटल चेंज होता है ना, रेडिकल चेंज नहीं देखते हैं। तो हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाता है पॉलिसी, स्कीम्स और बजट में। ठीक। सिंस इंडिपेंडेंस क्या देख रहे हैं कि पॉलिटी आया, लिबरल पॉलिटी अडॉप्ट किए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी में मिसमैच था, यानी एक तरफ क्या देख रहे हैं कि ना जो वेलफेयर अडॉप्ट कर लिए, लेकिन सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंटल एजेंडा चला रहे, सोशलिस्टिक मॉडल फॉलो किए, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फेडरल। तो अभी क्या है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स रिफॉर्म ये सब रियलाइज नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना। तो अब देख रहे पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों का जो नीड्स है ना उसको फुलफिल करना जरूरत है। कॉलोनियल पावर में क्या देख रहे हैं, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट, दे वर नॉट पॉपुलर गवर्नमेंट, है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट का पावर क्या था, पॉपुलर गवर्नमेंट ने था, दे वर नॉट वरीड अबाउट द कंसर्न्स ऑफ द पीपल। लेकिन आजादी के बाद तो क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंसर्न्स क्या हो गया, लोगों को वेलफेयर, क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड था। अब कमिटी कमीशन सेटअप करके अलग अलग रिफॉर्म्स है ना सजेस्ट किया गया। नेहरूवियन एरा में देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, एंगर कमिटी था, है ना, गोरावाला कमेटी, एप्पल वाई कमेटी 1954 में। ये अब कई बार ना मतलब इंट्रोडक्शन इस सब में आप डेट भी, या पीटी पॉलिटी में भी आता है क्वेश्चंस ना। तो बलवंत राय मेहता या पंचायती राज के जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें भी कोट कर सकते हैं। संथानम कमेटी है जिसके आधार पे, है ना, सीबीसी ये सब सेटअप किया गया था 1962 में। ठीक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आया, ARC 2 1 रिकमेंड, है ना, कमेटी सेटअप किया। तो हर गवर्नमेंट क्या करेगा, कमेटी कमीशन सेटअप करेगा, वो अलग अलग फील्ड में रिकमेंडेशन देगा और उसको लागू किया जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम देख रहे हैं, कोठारी कमीशन, LK झा रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म कमीशन सेटअप किया गया, सरकारी कमीशन 83 में सेटअप किया गया। ठीक। जनता गवर्नमेंट आई तो, है ना, तो इसने, है ना, पुलिस कमीशन बना दिया, 77 का शाह कमीशन बना दिया। तो उसमें पुलिस में कैसे रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम क्या देख रहे हैं, कई सारे मिसयूज हुआ, एक्सेसेस ऑफ पुलिस फोर्स। फिर 1980s में देखो सतीश चंद्रा कमेटी और अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में सजेस्ट किया। LPG रिफॉर्म आ गया 90s के बाद, 73rd अमेंडमेंट आ गया। ठीक। वाजपेयी गवर्नमेंट में देख रहे हैं अलग 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 कमेटी, होटा कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी, वो सेटअप किया गया। 2004 से 14 में क्या देखे, ARC 2 है, फिर है ना पुलिस कमीशन 2 सेटअप किया गया, फिर पुंची कमीशन है, RTI गवर्नेंस, ये सब कितने सारे रिफॉर्म्स लाए गए। 2014 के बाद तो गवर्नमेंट काफी रेडिकल चेंज ला रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन देख लेंगे। तो इसमें ओवरव्यू ऑफ द रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। तो हम लोग लगभग 500 से ज्यादा कमिटी आ गया, उसकी क्या रिकमेंडेशन है उसको भी अभी तक अच्छे से, है ना, कितना लागू हुआ क्या हुआ उसको एसेस करना है। ठीक। 19 नेहरू एरा में, तो क्योंकि उस समय आजादी हुई थी, इतने रिसोर्स स्कैरसिटी था और डिमांड बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी था, इनइक्वालिटी था, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस था। तो गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ चैलेंज, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी कैरी ऑन कर रहा है, तो ब्यूरोक्रेटिक चेंज भी करना है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना है। तो लॉट ऑफ चैलेंज वाज देयर ड्यूरिंग 1950s, है ना। तो इंपॉर्टेंट कमिटी उस समय भी कुछ सेटअप किया गया, जैसे पॉल एपल वाई कमेटी, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक। तो इसमें है ना इसके तो वही एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या फिर गवर्नमेंट के जो लूपहोल्स को हाईलाइट करना, प्लस उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। जैसे मान लो एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड सेटअप किया गया बेस्ड ऑन टेलरिज्म आइडिया। ऑर्गेनाइजेशन मेथड में क्या होगा, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब करता रहेगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। फिर IAPA का सेटअप भी किसके आधार पे हुआ था, पॉल एपल वाई कमेटी का रिकमेंडेशन पे ही। यानी ONM जो सेटअप किया गया, या इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पॉल एपल वाई कमेटी। तो अब ये दो रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ठीक। बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, पंचायती राज पे बोला कि लोगों के डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करने की जरूरत है, लोगों का रोल को बढ़ा दो। 1962 में संतानम कमेटी, ये बोला करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, है ना,
तो करप्शन तो भाई लोअर लेवल हाई लेवल हर जगह हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ करप्शन। तो इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया, डिस्क्रिशन को कम कर दो, मिनिमाइज कर दो, चेक्स एंड बैलेंस को बढ़ा दो, ऑम्बुड्समैन क्रिएट कर दो, है ना, लोकपाल जैसे लाइक इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि भाई हर 15 साल में, 15 साल और 25 साल के बाद क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, 15 साल में कितने सिविल सर्वेंट कितना इफेक्टिव है, खराब को फेंको बाहर करो, डेड को। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस हमने क्या देखा कि देखो 1963 74 64 में सीबीसी सेटअप किया गया था, किसके आधार पे, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कंडक्ट रूल बनाया गया था 1964 में, और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 में आया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट अभी अडॉप्ट किया है, या तो परफॉर्म करो या नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ रिकमेंडेशन अडॉप्ट, जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया, है ना। प्लानिंग वाले जो आइडिया थे, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसके भी रिकमेंडेशन को भी अडॉप्ट किया गया। ठीक। उसके 1960 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम भी अपन देख रहे हैं, ERC 1 जो है ना, पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना दिया कि ट्राई टू एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 20 रिपोर्ट्स लेके आया टोटल, मोर देन 550 रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय ERC 1। तो क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन यही है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब जो साइज बताया कि भाई अननेसेसरी इन्फ्लेट मत करो गवर्नमेंट का, है ना। गवर्नमेंट तो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस बजटिंग अडॉप्ट करो, उस समय ही सजेस्ट कर दिया, है ना। अकाउंट ऑडिट को सेपरेट कर दो, दैट वाज एक्सेप्टेड। परफॉर्मेंस बजटिंग भी अडॉप्ट कर लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज में भी अपन देख रहे बाद में इसको 15 है ना लिमिट कर दिया। फिर सेक्रेटरीट में लेवल जंपिंग, है ना, डेस्क ऑफिस ये सब, कि भाई यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लेवल डेस्क में जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई फाइल है 10 जगह मूव कर रहा है, 10 लोग साइन कर रहे हो, हटाओ उसको, अननेसेसरी फाइल साइनिंग नहीं होना चाहिए। तो लेवल जंपिंग ये सब प्रमोट करना चाहिए, डेस्क ऑफिसर सिस्टम अडॉप्ट करो। ठीक। स्टेट प्लानिंग बोर्ड सेटअप किया गया उसी के रिकमेंडेशन के आधार पे। ठीक। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस बजटिंग अकाउंट को अडॉप्ट किया गया, ये सब अडॉप्ट किया गया, डेस्क ऑफिस सिस्टम भी हमने अडॉप्ट किया है। ठीक। तो इसमें और क्या दिया गया है कि इंदिरा गांधी के टाइम आ गए, तो परफॉर्म है ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस बजटिंग यहाँ पे लाया गया, ऑडिट को सेपरेट किया गया। कौन है ना, एपीलेट ट्रिब्यूनल कैट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला गया उसके लिए, 42nd अमेंडमेंट में काफी चेंजेस है। ठीक। कॉमन सिविल सर्विसेज एग्जाम भी अडॉप्ट किया गया बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस। ठीक। तो वही इंटरनल इमरजेंसी ये सब जो लगा है क्या, वो प्रॉब्लमेटिक था। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी कहीं न कहीं किसके टाइम आता है, इंदिरा गांधी के टाइम आता है। तो न्यूट्रलिटी को वायलेट किया गया। फिर जनता गवर्नमेंट क्या हुआ कि शॉर्ट लिव गवर्नमेंट था जनता गवर्नमेंट, लेकिन पुलिस कम रिफॉर्म के लिए उसने नेशनल पुलिस कमीशन सेटअप कर लिया। ठीक। राजीव गांधी के टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं, आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लाया, टेलीकॉम में रिवोल्यूशन आया, कंप्यूटराइजेशन हुआ, कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वहीं से शुरू हो गया, ह्यूमन रिसोर्स पे काफी फोकस था। फिर 90s ऑनवर्ड क्या देख रहे हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट आ गया, न्यू एलपीजी आ रहा है, न्यू रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया, एनपीएम मॉडल्स को अडॉप्ट किया गया इंडिया में। तो ब्यूरोक्रेटिक्स अपन कहाँ मूव कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, है ना। तो रेगुलेशन से फैसिलिटेटर इनेबलर रोल पे चले जा रहे हैं, एमआरटीपी को है ना एबोलिश किया गया। फिर इंडस्ट्री ने पॉलिसी लाया गया, 73rd 74th में डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट किया अपन। ठीक। उसके बाद आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ये सब क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नो पीपुल सेंट्रिक बनाने के लिए काम किया गया। फिर वाजपेयी गवर्नमेंट आया, उसने भी क्या किया, है ना, इनेक्ट किया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो बाद में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बन गया। भारत निर्माण सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक। यूपीए गवर्नमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड ईआरसी सेटअप कर दिए, पुलिस सेकेंड पुलिस कमीशन बना दिए, है ना। पुंची कमीशन क्या था, सेकेंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए बन गया। ठीक। आरटीआई गवर्नेंस, वेरी है ना स्मार्ट गवर्नेंस आजकल कॉन्टेक्ट चल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट में काफी चेंज है, ट्रेनिंग पॉलिसी में अब तो और ज्यादा है ना, मिशन कर्मियों की यानी काफी चेंज और हो गया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी चेंज हुआ, पुलिस होता है, सेवोत्तम मॉडल है। तो 2000 थिंग्स, परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव 2011 में लॉन्च किया गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन भी क्रिएट किया गया, कहाँ पे, कैबिनेट सेक्रेटरीट में। पॉलिसी लेवल पे क्या, सिनेरियो प्लानिंग अडॉप्ट किए, इंडिकेटिव प्लानिंग सेटअप किए, कंटीजेंसी थ्योरी अडॉप्ट कर रहे हैं अपन, आउटकम बजटिंग है, फारबीएम एक्ट भी अडॉप्ट किया गया, फ्लेक्सिब प्रोग्राम, ये सब रेशनलाइज भी किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज को। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पे काफी फोकस है, ई पंचायत ये सब भी अडॉप्ट किए, नरेगा स्कीम जैसा लॉन्च किया गया, किसके टाइम, यूपीए के टाइम। ठीक। ARC 2 का रिकमेंडेशन, आरटीआई मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को रिफर्निश करने की जरूरत है, फाइनेंशियल सेक्टर में, लोकल गवर्नेंस में, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर में क्या क्या चेंज करना है, उसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया है।
ठीक है। तो स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट सेकेंड ईआरसी क्या है कि भाई एक तो कमिटी सेटअप किया, मॉनिटरिंग कमिटी सेटअप करके देखा क्या लागू हुआ कितना यानी सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंस्टीड ऑफ पिसमल रिफॉर्म। पिसमल रिफॉर्म फ्रेगमेंटेड रिफॉर्म्स, उसको हटा के आपको क्या है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक लीगल पर्सनल पूरा रिफॉर्म एक साथ लाना पड़ेगा, देन ओनली वी हैव ए सक्सेसफुल सिनेरियो। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी शुड बी अडॉप्टेड, है ना, न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना है इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ठीक। तो एनपीएम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो आइडिया है ना थियोरेटिकली, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेटस में क्या देख रहे हैं कि जैसे एक तो न्यू परफॉर्मेंस अप्रेजल तो इंटर पुलिस और एग्जांपल हो गया, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्ट्रक्चर। रिक्रूटमेंट में भी काफी रिफॉर्म्स ऑप्शनल ऑप्शनल है ना, उसमें चेंज किया गया, पुलिस आ गया। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल बॉडी ये सबको ग्रांट्स और है ना, और फिर रेशनलाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग भी हो रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं रिफॉर्म्स का समरी अगर देखें तो हम लोग इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बने, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रोसेस हो। तो रिफॉर्म्स क्या है ना, कंपेयर करें तो दूसरे कंट्री भी एशियन, जैसे मान लो एशियन टाइगर से जब कंपेयर करते हैं तो स्टिल वी आर लैगिंग, है ना। इनोवेशंस की कमी है ना, कई सारे चैलेंजेस नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल चैलेंज है, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि रेडिकल, लेकिन वी आर हैविंग द इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स नॉट द रेडिकल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल प्रोसीजर चेंज तो हो रहा है लेकिन पिसमल हो रहा है, बिहेवियरल लेवल पे रिफॉर्म नहीं हो रहा है। अभी भी कॉलोनियल आउटलुक है, कमांड कंट्रोल इकोनॉमी, स्टेटस को इस नेचर है, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी है, इन्वर्टेड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर टॉप है ना, वो चल रहा है। करप्शन तो नेक्सस करप्शन ये सब तो है ही। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को वही है कि ना इंडियन कंडीशन इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब पे आपको इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म करने हैं, प्रोसेस रिफॉर्म करने हैं। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी आरसी 1 2 ने भी रिकमेंड किया, अडॉप्ट करो। ठीक, तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, होल ऑफ द सिटी अप्रोच होना चाहिए, ताकि क्या होगा, अभी क्या पैरासेटल बॉडीज है, इतने सारे मल्टी इंस्टीट्यूशनल जंगल क्रिएट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो दैट इज अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम। देन देयर शुड बी इंटरलिंकेजेस, है ना, नीति आयोग का जो आइडिया उसको इफेक्टिवली लागू करना है। ठीक। तो अब इन्वर्टेड पिरामिड होना चाहिए। अब जब पहले क्या होता था, पावर अधिकतर ऑफिसर्स ऊपर में है, नीचे बहुत ही कम ऑफिसर होता था, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नीचे हो रहा है। तो इट शुड बी इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है ना, व्हाट 1950 में अडॉप्ट किया गया। तो वहाँ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी भी ना ब्यूरोक्रेसी जो है रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, पिरामिडिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है। ठीक। तो ARC 2 रिकमेंड है ना, इसलिए बोला प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ले आओ। जैसे नारायण मूर्ति ये भी बोलता है ना, इम्पेडिमेंट था, ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है, ब्यूरोक्रेसी इज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंटल ऑफ, है ना, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सिंगापुर ये सब से जब कंपेयर करते हैं तो उसमें देखते हैं भाई वहां पे कितना तेजी से ग्रोथ हुआ, जापान में कितना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हाउ दे हैव एबल टू रेपिडली रिकवर द लॉसेस। ठीक। तो इनोवेशंस की कमी है, कई सारे प्रॉब्लम है। ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चैलेंजेस है, पॉलिटिकल विल नहीं है ना, रेडिकल रिफॉर्म लेना नहीं चाहता, बोल्ड होता है। करंट गवर्नमेंट जैसे मान लो कि फार्म बिल लेके आया लेकिन प्रोटेस्ट हो गया तो उसको विड्रॉ करना पड़ गया, या डिमोनिटाइजेशन एक रेडिकल चेंज है, जीएसटी रिफॉर्म एक रेडिकल है। ठीक। तो दो आर द रेडिकल, इवन आर्टिकल 370 वो भी रेडिकल रिफॉर्म्स। तो करंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सम ऑफ द रेडिकल रिफॉर्म्स। ठीक है। चैलेंजेस होता है पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना आसान मुश्किल है, और डेमोक्रेसी में रिफॉर्म तो ऑलरेडी स्लो होता है, वी नो दैट। जैसे मान लो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इतने साल हुआ, तो अभी जाके करेंटली गवर्नमेंट आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये सब के लाके, है ना। तो यहाँ पे कंसेंसस बिल्ड नहीं हो, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसमें भी ना चैलेंजेस है, माल प्रैक्टिसेस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, फार्म बिल को विड्रॉ करना पड़ गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। तो वो करना क्या होगा, लोगों में कंसेंसस बिल्ड करना होगा, कंडीसिव एटमोस्फेयर है, गवर्नमेंट के प्रति लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, सोशल कैपिटल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब फेडरल पॉलिटी भी चैलेंज है, कई सारे रिफॉर्म लाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे पुअर है। ठीक। उसके एकेडमिक है ना, तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की कमी है, जो भी हम एकेडमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना, दे आर एकेडमिक इन नेचर, आइडियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी दिखती है उसमें, है ना। रिएक्शनरी रेटोरिक टाइप ऑफ रिफॉर्म ज्यादा होता है, जब है ना कट पेस्ट पॉलिसी वाला अडॉप्ट है, चिपका दो कट, तो वो प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। रिफॉर्म से तो इसमें हम लोग को है ना, तो ये क्या दिखा गया कि है ना इफेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेशन है ना कहीं पुअर है, ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस है ना, स्कैर्स, तो रिसोर्स स्कैरसिटी भी है, ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस भी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फैक्टर भी है ना, पब्लिक प्रेशर भी नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है, कंसेंसस नहीं हो पाता है।
तो हम लोग क्या करंट गवर्नमेंट नए 2014 के बाद देख रहे हैं, इंक्रीमेंटल भी है, क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म और रेडिकल रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं। इंक्रीमेंटल में जैसे मान लो ना, ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम को चेंज किया, 10% वेटेज अब दिया जा रहा है मेरिट में, है ना। किसके अलावा नाम जो वेटिंग है ना ट्रेनिंग होगा उसका 10% वेटेज हो जाएगा। और रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स है, प्रीलिम्स में भी चेंज किया गया, अब सीसैट ये सब डाल दिया गया, बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, तो ये सब क्या इंक्रीमेंटल चेंज है। और रेडिकल रिफॉर्म्स क्या है, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, लेटरल एंट्री है, परफॉर्म पेरिस है, 360 डिग्री है, परमिशन कर्मयोगी, डिमोनिटाइजेशन, गति शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, ये सब क्या है, रेडिकल रिफॉर्म्स है ना। पूरा एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी को, अब जैसे पीएम गति शक्ति, तो इतने सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा। 360 डिग्री अप्रेजल है, तो पूरा हर जगह से फीडबैक लिया जा रहा है, परफॉर्म या पेरिस करो। लेटरल एंट्री अगेन अपने आप में बहुत बड़ा रेडिकल रिफॉर्म्स है, ठीक। तो दो हजार मिशन कर्मयोगी आल्सो रेडिकल रिफॉर्म्स। तो अब ये एक तो इंक्रीमेंटल भी है, रेडिकल रिफॉर्म्स। क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू कैडर पॉलिसी, इम्पैनलमेंट वाला है, स्पैरो है, रुर्बन है। तो 2000 क्रिएटिव इंक्रीमेंटल आइडियाज। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लार्जली रेडिकल इन नेचर है ना, अधिक रेडिकल नेचर का काफी रिफॉर्म्स लाया गया, क्योंकि सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना आसान है। तो करंट गवर्नमेंट का फिलोसफी वही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। एनपीएम आइडियाज को, न्यू टेररिज्म का आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे भी फोकस है, न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल्स को भी अडॉप्ट किया गया है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, दैट इज द फिलोसफी ऑफ करंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या इंक्रीमेंटलिज्म है ना, दो है ना, स्टिल रिमेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन मेजर जो पहला जो हम देखते हैं ना ओवर रेडिकल रिफॉर्म, वो 1990s में देखते हैं, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी नया, एलपीजी रिफॉर्म आ गया, गवर्नेंस में भी 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया। तो दैट इज अगेन रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर, इन द। तो प्रॉब्लम वही है, बिहेवियरल लेवल पे चेंजेस नहीं हो पाया। और क्या क्या करंट में स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रोसेस में क्या क्या चेंज आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो हम लोग क्या देख, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस है ना, काफी ज्यादा डिजिटल इंडिया और एआई, ब्लॉकचेन, इस सब का उपयोग हो गया, बिग डाटा एनालिटिक्स हो गया। और रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी है, नीति आयोग, लेटरल एंट्री, ये सब क्या स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है। अब बिहेवियरल चेंज में लाने के लिए हमने क्या किया कि माइंडसेट कैसे चेंज करो, 360 डिग्री अप्रेजल लेके आ गया, है ना। प्लीज हो गया, परफॉर्म पेरिस हो गया, 9 to 9 वर्क कल्चर आ गया, स्पैरो हो गया, प्रोबिटी, ये सब आउटकम ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, ठीक। उसके बाद माइंडसेट लोगों का चेंज करना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत है, आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल। ये सब क्या है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और बिहेवियर, है ना, सब जगह चेंज लाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिया है। तो कई सारे है ना अच्छा रिजल्ट भी आया है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी इंप्रूव हुआ है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बढ़ा है, इनोवेशन में इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी आ रहा है। कई सारे सक्सेसफुल प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइक स्वच्छ भारत अभियान है, डीबीटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम है। तो दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, है ना। तो सक्सेस है ना, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड कर रहा है, इंडिजिनस अप्रोच भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ठीक। तो सक्सेस हैज बीन रजिस्टर्ड। क्यों? एक तो यही कि जो पुरानी डबल लूप लर्निंग हमने अडॉप्ट किया इंस्टीड ऑफ सिंगल लूप लर्निंग, क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म अडॉप्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, रोल एंड गोल क्लैरिटी है ना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इफेक्टिव इंप्लीमेंट कर रहा है, बजटरी सपोर्ट भी दिया जा रहा है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी है, उसमें भी काफी है ना रिफॉर्म लेने का पॉलिटिकल विल है। अब लेकिन करंट गवर्नमेंट का भी कुछ क्रिटिसिज्म होगा, क्या होगा, जैसे मान लो कि है ना इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सब में क्या क्रिटिसाइज क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिटिसाइज, मतलब यही है कि जैसे मान लो कि एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, लोकपाल को अच्छे से लागू नहीं किया, पुलिस रिफॉर्म अभी भी नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो इंस्टेंट जस्टिस रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है ना। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक चैलेंज आ रहे हैं करंट गवर्नमेंट में, कई सारे क्रिटिसिज्म है, जो मतलब कि थोड़ा रेडिकल रिफॉर्म तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फेवर ज्यादा कर रहा है, इसलिए कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहा है। या अब जैसे लेटरल एंट्री है, 360 डिग्री, तो इसमें पॉलिटिशियन पार्टीशनशिप का है ना पोटेंशियल है। 360 डिग्री अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स है ना, कोशिश तो कर रहा है, नॉट ओनली सिस्टमेटिक बट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो होना चाहिए, है ना। लोकल लेवल पे आपको वो पावर देने की जरूरत है, ठीक है। एंटी करप्शन एजेंसीज को बढ़िया करो, पुलिस जुडिशल में रिफॉर्म होना चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए, पार्लियामेंट का वर्किंग में कितना एडजर्नमेंट हो रहा है उसमें रिफॉर्म करो, पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम इफेक्टिव नहीं हो रहा है, बिल का स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। दोज आर द चैलेंज, देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काफी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो नहीं हो रहा है।
तो दोज आर द चैलेंजेस। ठीक है, सिविल सर्विसेज में क्या है, लेटरल एंट्री, परफॉर्म पेरिस, स्पैरो हो गया, न्यू एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, मिशन करो, दीज आर द इनिशिएटिव्स। फिर जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का डिबेट आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को डोमेन स्पेशलाइजेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिबेट में हम लोग जर्नलिस्ट क्या होता है, दो एकेडमिक अचीवमेंट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, कॉमन एक जनरल बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन कोई भी किया हुआ है, तो दे आर एलिजिबल टू बिकम आईएएस आईपीएस, तो जर्नलिस्ट होता है कोर। ठीक, ऑल दो सर्विसेज व्हिच हैव स्पेशलाइज्ड एकेडमिक क्राइटेरिया, जैसे मान लो इंजीनियरिंग सर्विस है ना, तो इकोनॉमिक सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, दोज रिक्वायर्ड एकेडमिक क्राइटेरिया स्पेसिफिक, जैसे सब कोई ना फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, दोज आर स्पेशलिस्ट। एक तो रिक्रूटमेंट में ही अपन देखे फिल्टरिंग हो गया जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का, तो रूट वही है, मैकाले कमेटी, कोठारी वाला कमेटी, है ना, तो कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ जर्नलिस्ट सर्विसेज। तो मैक्स वेबर क्या बोलता था, रैंक क्लासिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, जर्नलिस्ट नेचर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी क्यों है, जैसे मान लो मैकेलियन लेगेसी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो जितने भी कमिटी उसने रिकमेंड किया कि ठीक है, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी मॉडल जो है जर्नलिस्ट नेचर है, आईएएस का डोमिनेंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल पोस्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, आईएएस ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो ये जर्नलिस्टिक करेक्टर, इनहेरेंट जर्नलिस्टिक करेक्टरिस्टिक आ जाता है, क्यों, आईएएस डोमिनेट करता है ना, आईएएस जर्नलिस्टिक नेचर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन, जो भी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन वहां भी आईएएस उसको हेड कर रहा है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट का भी ग्रीवेंसेस है कि आईएएस को ही टॉप पोस्ट पे लिया जा रहा है, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेस्टीज ऑनर ये सब इंजॉय करता है। तो स्पेशलिस्ट के पास नॉलेज है, लीडरशिप स्किल है, लेकिन उसको ना चांसेस नहीं मिल रहा है। तो कुछ एग्जांपल जैसे मान लो वर्गीज कुरियन का है, स्वामीनाथन है, अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई, ई श्रीधरन, तो कई सारे आईआईटी आईएम के ग्रेजुएट हो गए और प्रोफेसर हो गए। तो है ना, देयर स्टिल देयर इज लैक ऑफ पे पैरिटी, पे पैरिटी का भी डिबेट चलता रहता है आईएएस और आईपीएस और आईआरएस के बीच में। ठीक, तो आईएएस भी है ना सीएजी की तरह अपॉइंट किया जा रहा है, इंस्टीड ऑफ ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ द सीएजी, तो वो भी एक चैलेंज है। ठीक, तो आईएएस मतलब वही है, आईएएस का डोमिनेंस हर जगह देख रहे हैं कि आईएएस क्या होता है, जैसे हैंडी फ्यूल इसको सपोर्ट भी करता है। हैंडी फ्यूल क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज्यादा चाहिए, टेक्निकल स्किल कम चाहिए, एट द टॉप है ना, टॉप लेडर ऑफ द हायरार्की, मिडिल लेवल पे तो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लोअर एंड मिडिल, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जर्नलिस्टिक स्किल रिक्वायर ज्यादा होता है। तो फ्यूल इस आइडिया को सपोर्ट भी करता है, जर्नलिस्टिक लीडरशिप को। ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस होता है, इंटर डिपार्टमेंट, तो डिसिप्लिनरी नॉलेज होना जरूरत है ना। तो इंटर डिपार्टमेंटल नेचर, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर, इसके लिए क्या जर्नलिस्ट होगा तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके आएगा, नैरो पर्सपेक्टिव नहीं लाएगा, लेकिन इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। अब देखो स्पेशलिस्ट का क्या है कि है ना, मोर स्पेशलिस्ट नोज मोर अबाउट लेस एंड लेस एरियाज, तो स्पेशलिस्ट क्या लिमिटेड नॉलेज होता है, स्पेसिफिक है ना, घोड़े की लगाम Excuse है me, ना। sir. या Sir, प्लीज। I again have that same doubt that IPS is a generalist or a specialist. देखो इन जनरल जो अगर हम जो सर ने लिखा है ना उसके हिसाब से तो यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शनल स्पेशलिस्ट एक टर्म यूज किया गया है, स्पेशलिस्ट बाय कोर होता है ना, तो दे आर Yes, sir. पार्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ओनली। ठीक, तो अब देखो जनरलिस्ट तो Okay. आईएएस हो गया, है ना, यहाँ देखो स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट बाय कोर और फंक्शनल स्पेशलिस्ट हो गया, ये है मेन आइडिया। ठीक है ना, ठीक है ये सर. ये याद रखना है कि जनरलिस्ट आईएएस हो गया, बाकी सब जो है ना सर्विस दे आर फंक्शनल स्पेशलिस्ट, है Okay. ना। अब बाकी इंजीनियरिंग सर्विस है तो कोर है, उसका सब्जेक्ट ही फॉरेस्ट हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है ना, वो सब होगा। Okay. Thank you, sir. तो स्टेप्स टेकन टू एड्रेस स्पेशलिस्ट ग्रीवेंस क्या है, गवर्नमेंट ने है ना क्या किया, जर्नलिस्ट पे पोस्ट पे अब आजकल स्पेशलिस्ट को भी अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, उसको भी है ना टॉप लेवल पोजीशन पे ऑक्यूपाई किया जा रहा है। लेकिन अभी भी पूरा ना प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है कि अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है कि स्पेशलिस्ट को भी प्रमोट करो हायर लेवल पोजीशन पे, डोमेन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जर्नलिस्ट का, एकेडमिक स्टडी ये सब के लिए भेजो, लेटरल एंट्री प्रमोट करो, इससे क्या होगा, है ना। तो जर्नलिस्ट को हम लोग क्या बना रहे हैं, स्पेशलिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री में तो देखो हाई है ना प्रेफरेंस है ना, तो इससे क्या इनोवेशन क्रिएटिविटी ये सब भी आ रहा है। तो आईएएस वर्सेस रेस्ट का जो अप्रोच है ना, तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट आ गया, नेटवर्क गवर्नेंस आ गया, तो इसमें हम लोग को क्या है, फंक्शनल नॉलेज होना जरूरत है ना, फंक्शनल एक्सपर्टी नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, फिर लेटरल एंट्री पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेटरल एंट्री क्या है, क्यों है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि वेदर मेयरली हैविंग ए स्पेशलिस्ट स्किल आर एनफ फॉर बीइंग एफिशिएंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप सिर्फ स्किल होने से काम तो होगा नहीं, है ना। तो है ना यही क्वेश्चन को एग्जामिन करना है, इस and that means skill is also required but at the same time there are other aspect of administration,
ठीक, वो निकालना है। लेटरल एंट्री ब्रिंग्स प्रोफेशनलिज्म बट थ्रेटन ट्रेडिशनल वैल्यू एट द एडमिनिस्ट्रेशन। लॉयलिटी वाला है, पब्लिक सर्विस मोटिव में। तो यस, एग्री एंड डिसएग्री बोथ। ठीक है, तो क्या क्या है लेटरल एंट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे मान लो 2017 में लागू कर दिया गया, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेशलाइजेशन होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, और कॉम्प्लिसेंसी और जनरलिस्ट ओरिएंटेशन को कम करेगा या खत्म करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेटरल एंट्री क्या टेलरियन मॉडल है। पर्सनल मैनेजमेंट में काफी राइट पर्सन एट राइट पोजीशन है ना, तो वो वाला कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। सेवंथ पे कमीशन और बाकी ERC टू सबने रिकमेंड किया कि ठीक है लेटरल एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया 2 फेज में। पहला फेज में 10 पोजीशन लाया, दूसरे फेज में 30 पोजीशन लाया। तो अब क्योंकि लेटरल एंट्री है ना, 37 लेटरल एंट्रेंस आया, 2 तो क्विट कर दिया। तो है ना, अब उसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री आने से क्या होगा, आउटसाइडर आ रहे हैं। आउटसाइडर आ रहे हैं तो दे विल कम अप विद न्यू इनोवेशन, क्रिएटिविटी, है ना। तो कई सारे जो अलग बॉडीज है, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, रेगुलेटरी बॉडीज, PMO, तो उसमें क्या है कि हम लोग ऑलरेडी कई सारे लेटरल एंट्रेंस को एंट्री दे रहे हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब तो काफी पोजीशंस पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, उसके हेड की तरह है ना, डायरेक्टर की तरह। ठीक, मनमोहन सिंह भी क्या था, लेटरल एंट्रेंट था, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है, ही वाज सर्विंग एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, बाद में उसको RBI का गवर्नर बना दिया। फिर 2017 के बाद क्या देख रहे हैं, नीड एंड बेनिफिट्स देखते हैं। तो क्योंकि देखो इतने सारे चेंज आ गए, सोशल मीडिया, इनोवेशन, LPG, मार्केट रिफॉर्म्स, ये सब आ गया। तो आपको क्या है ना, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट कब बनेगा, जब इनोवेशन, क्रिएटिविटी आएगा। कॉम्प्लिसेंसी ये सब खत्म करना है, इनोवेशन प्रमोट करना है, स्पेशलिस्ट नेचर होना चाहिए। मैकेनिकल ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी ये सब खत्म करो, रूल ड्रिवन से रोल ड्रिवन या इनोवेशन ड्रिवन होना चाहिए। स्टेटस को इससे चेंज होने चाहिए, इसलिए अपन को क्या चाहिए, लेटरल एंट्री चाहिए। वो क्या करेगा, एक्सपर्टीज लाएगा, प्रोफेशनलिज्म लाएगा, इनोवेशन लाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव द, nowadays lot of policy making is not an easy task। E-commerce है, टेक्नोलॉजिकल, तो lot of my integrities are there which required specialized knowledge, है ना। इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है वो सब भी जरूरत है। ठीक, तो प्रोज क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लाया, सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है। IIP एक जो है इंडियन, है ना, फाउंडेशनल ट्रेनिंग इसको देता है लेटरल एंट्रेंस को। कौन में वही देख रहे हैं ना, एक तो लिमिटेड है ना, टसल भी है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का जो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स होता है। नो चेंजर्स, है ना, कई लोग क्रिटिक है कि भाई चेंज मत करो, ये सब है ना कहीं पॉलिटिसाइज हो रहा है, मेरे प्रमोट, तो दो मेरिटोक्रेसी प्रमोट कर रहा है, लेकिन सोशल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्यों, रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है लेटरल एंट्री में, तो वहां पे है ना कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो चैलेंजेस वही है, चैलेंजेस क्या क्या है लेटरल एंट्री का, तो मेरिटोक्रेसी है ना, जो चैलेंज मान लो इलिटिसाइजेशन, मतलब इलीट लोग का कैप्चर हो सकता है मेरिट के नाम पे, है ना, सपोज टॉप डाउन, वही है कि लोअर बैकवर्ड सेक्शन ये सब कंप्लेन करता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, क्यों, मान लो कि जो कुछ साल सर्व किया फिर जाके प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा, उसके फेवरेबल पॉलिसी बना के चला गया। ठीक है, वो एक चैलेंज है। अकाउंटेबिलिटी एक चैलेंज है। ब्यूरो शेपिंग पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स के लिए आके ज्वाइन करके फिर बाद में कंपनी में चला गया, रेंट सेकिंग, नेक्सस करप्शन, ये सब प्रमोट होता है लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी इनसाइड और आउटसाइड के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी का इशू है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फील्ड एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ग्राउंड लेवल पॉलिसी मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क, यू नीड टू हैव द ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस। तो वो सब क्या है, लेटरल एंट्रेंस में नहीं है। तो रेलेवेंस क्या है, डिस्पाइट लिमिटेशन, रेलेवेंस क्या है कि हम लोग के कई सारे कंट्री में ऑलरेडी है ना अडॉप्ट किया गया है, यूके में एग्जांपल है। तो अब जनरलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक को अपन क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ गवर्नेंस के कारण। तो लेटरल एंट्रेंस ये अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपर्टीज बढ़ाने का, कंपटीशन बढ़ाने का। तो लेटरल एंट्री हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट कई सारे कंट्री में, है ना। तो ये अपन को मतलब इसका बेनिफिट्स काफी है। चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो कैसे करो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म करो, कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ा दो आउटसाइडर इनसाइडर के बीच में, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, जो रिक्रूट कर रहा है वो इम्पार्शियल तरीके से करे, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ठीक, डोमेन जनरलिस्ट को भी डोमेन स्पेशलाइजेशन ये सब दे दो, हायर एजुकेशन के लिए भेज दो। तो प्रॉब्लम वही है कि आपको ना मतलब इंडियन ब्यूरोक्रेसी फेल क्यों कर रहा है, जैसे माने ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल है ना इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस कल्चर नहीं है। ठीक, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होता, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस लिया जाता है। तो दो आर द चैलेंजेस, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लेटरल एंट्री कैन नॉट बी पनिशिया, है ना, बट इट कैन बी सप्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्मिंग। कुछ और भी रिफॉर्म्स है, जैसे परफॉर्म पेरिस का, जो डे डूट्स है, जो काम नहीं कर रहा है ना, उसको बाहर निकालो, हटाओ इसके,
2017 में लाया गया, कई सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, हटाया गया नौकरी से, है ना, अर्ली रिटायरमेंट किया गया, क्योंकि वॉलेंटरी रिटायरमेंट में जो काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ। फिर और भी एसेस करने के लिए स्पैरो प्रोबिटी एंड सॉल्व आया। स्पैरो परफॉर्मेंस के लिए था, प्रोबिटी इंटीग्रिटी के लिए, और डिसीजन मेकिंग के लिए सॉल्व आ गया। ठीक, तो यही है इवोल्यूशन ऑफ द इनिशिएटिव। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी, एब्सोल्यूट नेचर ऑफ जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट में, इसको उसको अब खत्म किया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, परफॉर्म मस्ट परफॉर्म, अदरवाइज उसको टर्मिनेट कर देंगे नौकरी से। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है कि यू कैन नॉट टेक थिंग्स ग्रांटेड। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर में तो अपने कॉम्प्लिसेंसी, इनएफिशिएंसी, स्टेटस को, रेटिपिज्म, ये तो है। इसलिए परफॉर्म पेरिस वाला जैसे ही खतरा आएगा ना, तो दे विल स्टार्ट वर्किंग। अब ये ब्यूरोक्रेसी क्या पीटर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, पार्किंसंस लॉ को अडॉप्ट करता है। ठीक, तो वो एक प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, तो ये सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म वही है कि ना, अब यहाँ पे वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, 360 डिग्री अप्रेजल भी अपन क्रिटिसाइज किया गया, ओपेकनेस है, आर्बिट्रेरीनेस है इसमें, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस नहीं है, सिविल सर्वेंट को नहीं दिया जाता है। ठीक, रिटायरिंग ऑफिसर्स है ना, रिटायर होने के बावजूद उसको सर्विस में रखा जा रहा है। जैसे मान लो दिल्ली गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। ठीक, तो रेट इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इतने सारे चैलेंजेस। ठीक है, 360 डिग्री अप्रेजल भी फुल ऑफ सब्जेक्टिविटी है ना। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सिविल सर्वेंट, ये सबको देना जरूरी है ना। और जैसे न्यू कैडर पॉलिसी आया, स्टेट वाइज पहले होता था, अब हमने क्या किया, जोन बना दिया। उससे क्या होगा कि टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो कैडर पॉलिसी से काफी, है ना, तो परसेंटेज ऑफ कैडेट जो होता था अलग अलग स्टेट से, तो टैलेंट का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। ठीक, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव होता है ऑल इंडिया सर्वेंट के पास में। और तो न्यू कैडर पॉलिसी का काफी, है ना, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसी से रिलेटेड है टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो जस्ट आई विल मेक यू गो थ्रू इट, है ना, एक बार देख लो फटाफट। तो ऑर्गेनाइजेशनल मेथड है ना, वर्क मेथड, स्टडी टाइम, स्टडी, टेररिज्म, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स है, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या एमआईएस है, सीपीएम पार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, ये सब में हमने क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी जरूरी है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। एक्सक्यूज मी फिर, सर। हाँ सर ये प्लीज। वाला चैप्टर शायद हो गया था। हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है। इफ यू वांट आई जी। कैन गो थ्रू, और ठीक है, लेकिन ये तो हो चुका है। ठीक है, तो बस आइडिया वही है कि ना, जो भी रिफॉर्म कर रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात है ना, तो है ना, माइंड में एकदम इमीडिएटली पहले वुडरो विल्सन आ जाना चाहिए। यस ठीक सर। है, टेलर उसके बाद, और टेलरिज्म। हाँ, विड्रो विल्सन के बाद जितने थिंकर्स आ गए, थिंकर्स हो गए, प्लस जितने स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे एनपीए है, एनपीएम एंड पोस्ट एनपीएम मॉडल्स है, वो सब क्या है, उसी का निचोड़ यहाँ पे आना चाहिए, है ना। अब प्लस में हम, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल क्या होगा, गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या कमिटी कमीशन है, उसके क्या क्या की रिकमेंडेशन है सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे सॉल्यूशंस वगैरह में जैसे लिंक्डइन मॉडल, पैलिकर्ट, ये सर भी हैं। यस यस यस, ये थ्योरी वाला थिंकर का नाम। तो इससे यस। क्या होगा ना, आंसर इंडीच हो जाता है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी डाल दिए और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव भी डाल दिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का जरूरत है, और इधर जो गैप है उसको, ओवर मिसमैच को खत्म करना है। ठीक है ना, यही यस ऑब्जेक्टिव। सर। ठीक है फिर, है ना। तो अभी बस एक टॉपिक बच रहा है अर्बन गवर्नेंस का, आई थिंक लोकल गवर्नेंस है शायद, अर्बन या लोकल गवर्नेंस। तो वो सर जो रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, अगर सर ने जो भी एक टॉपिक बचा है, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट कराया था, पंचायती राज करा दिया ना सर ने, या म्यूनिसिपैलिटी कराया सर ने। सर अर्बन बचा है शायद। अच्छा ठीक है, एक टॉपिक बचा है, वो सर कल या परसों ले लेंगे। उसके बाद है ना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू सेशन कुछ बचे हुए हैं, है ना, कुछ पीवाईक्यू है, तो 2-3 सेशन और होगा शायद, तो उससे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यस ठीक सर, है। वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेन तो यही था, चैप्टर्स हम्म, रिवीजन। ठीक है। तो बस वही है, बीच में टाइम मिले, है ना, एक बार जस्ट रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है फिर। जी। थैंक यू सो चलो, मच सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू, सर। गुड नाइट।